वन इन क्वाइट सम टाइम कि हम लोग क्लास नहीं लिए. ओके, सो फॉर द पास्ट few days I have been messaged by a lot of people कि 2 चैप्टर करवा दीजिए मैम. एक है सिलोगिज्म, एक है क्लॉक. ठीक है. सो I have already provided with all the study materials. हाँ भी डिज़ाइन के लिए है राशि. ये ओके. बी डिजाइन के लिए, एम डिजाइन के लिए और एमएफएम और तीनों के एमएफएम लिए। सब सबके लिए है. ठीक है. Okay, so I've been asked about these chapters. So quickly, I'll talk about these chapters. I'll explain these chapters. Practice आज के क्लास में नहीं हो पाएगा. I've already provided with the study material with the practice papers. You can try and you can ask me personally कि अगर कोई डाउट है. So my number is there with you guys. एंड इनमें से अगर कोई एमएफएम वाले हैं, एमएफएम वाले प्लीज़ 7 से 8 बजे का क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा. बिकॉज इन दैट स्लॉट आई विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स. लाइक केस स्टडीज आता है. आई गिव यू केस स्टडीज का दिस थिंग, हाउ टू हैंडल एंड एवरीथिंग, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड आई विल गिव यू केस स्टडीज फॉर प्रैक्टिस इज वेल. जो लास्ट तक रुकेगा ऑब्वियसली उसी को मिलेगा. जो लास्ट तक नहीं रुकेगा तो उसको नहीं मिलेगा. ओके. सो या, आर वी एक्साइटेड? या, शशि सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? यस मैम। ओके, वी विल क्विकली स्टार्ट देन. So before starting today's chapter, the most questioned 2 chapters are: one is clock, the second is syllogism. I'll talk about clock and syllogism both today. So let me first start with syllogism, uh, and then we'll talk about this thing. We'll talk about clock. Okay. So before starting syllogism as a chapter, uh, I need to know कि आप लोगों को वेन डायग्राम्स पता है क्या होता है? वेन डायग्राम्स, you can drop a message also. If you have not got the practice papers, please contact Shashi sir. शशि सर ने सब प्रोवाइड कर दिया है. जस्ट 1 सेकेंड. ओके एवरीवन. सो क्या हमें वेन डायग्राम के बारे में पता है? हाँ या ना? प्लीज ड्रॉप मैसेज इन द ड्रॉप बॉक्स. ओके. नैन्सी यस मैम. भविता यस मैम. आई थिंक नैन्सी ने ही मुझे फोन किया था. नैन्सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस नैन्सी. और बताओ. यस यस यस. ओके. सो basically Venn diagrams are visual presentation of the question provided. So and syllogism क्या है? So Venn diagram is realistic diagram, not realistic. The questions are very realistic. ठीक है. जैसे अगर Venn diagram में कोई हमको बोलेगा question like few women are engineers, few women are mothers. So what would be the Venn diagram? So obviously there are few women who are mothers as well as engineers. There are few women who are only mothers, not engineers. There are few women who are only engineers, not mothers. Correct?
स्टडी मटेरियल की ड्राइव पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। ड्राइव ओपन नहीं हो रही है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, बिकॉज पीडीएफ यही है। मुझे नहीं पता क्या आप बोल रहे हो। For the study material, please contact Shashi sir. I have already this thing provided with all the study materials. Okay. Okay. Moving on. So everybody understood? Yes, no, yes, no. Okay. So now, what is syllogism? So syllogism is something which is hypothetical, which can be very much unrealistic. ठीक है, प्लीज उसको टेंशन मत लेना कि अरे ये तो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता. जस्ट गो बाय द क्वेश्चन. The question which are asked in the sections contain two statements, and these statements are followed by more conclusions. So basically जो हमको statement दिया जाता है उसको पढ़ के हमें conclusion को justify करना है. ठीक है, कैसे justify करेंगे? I will talk about all the probable diagrams in due course of time. Please आप मेरे साथ रुकिएगा अंत तक, so you will understand. Okay, so yeah. For such questions, you can obviously syllogism is only syllogism itself is solved with the help of Venn diagram. So Venn diagram is a tool to solve syllogism. ठीक है? All dogs are asses. All asses are bulls. So as we have already discussed, this is all. So what would be the conclusion? These we have to again justify. Some dogs are not bulls, some bulls are dogs. अब all है. All dogs are asses, all asses are bulls. So this is dog, this is asses. Sorry, let me draw this properly. Okay? Yes, no. Dogs. This is asses. This is bulls. Okay? Some dogs are not bulls. This is wrong. Some bulls are not dog. This is correct. All bulls are dogs. This is wrong. All dogs are bulls. This is correct. Okay. By seeing the diagram, we could justify. So 2 and 4 follows, which we have already spoken about. Understood everyone? Yes, no. अब जो जो मेरे को बोल रहे थे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Okay. So everyone, सिलोगिज्म के लिए ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है. वन, ऑल का डायग्राम जो अभी हम लोगों ने बात किया, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल, समझ में आया? दिस आई विल नॉट रब, दिस आई विल कंटिन्यू. अब आता है हमारा ऑल का कहानी चला गया. अब आ रहा है सम जिसमें दोनों सम है. ओके. Some dogs are asses, some asses are bulls, some asses are not dogs, some dogs are bulls. यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जब दोनों सेक्शंस में, यहाँ पे देखो दोनों सेक्शंस में सम सम रहेगा तो हमारे पास 5 डायग्राम्स होंगे. अगेन आई एम सीइंग दिस 5 डायग्राम्स यू शुड ड्रॉ. सम सम आएगा, ब्लाइंडली ये 5 डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा. अगर इसमें से सारे जस्टिफाई होते हैं तब भी हम लोग आंसर टिक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सम डॉग्स आर एसेस, सम एसेस आर बुल्स, सम एसेस आर नॉट डॉग्स, सम डॉग्स आर बुल्स. ओके, सो ये जो सम सम है, ठीक है, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4, डायग्राम 5. ठीक है,
ये पांचों जस्टिफाई होना चाहिए। दो फर्स्ट डायग्राम जब हम लोग सम सम आएगा इज वन, ये वाला बुल है, एस है, डॉग्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीनों में, मैं आप लोगों को डायग्राम समझा रही हूँ, तीनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे एक बार भी तीनों में कॉमन फैक्टर वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो नाउ द सेकेंड वन इज दिस, जहां पे एक तीनों में कॉमन फैक्टर है। ओके एवरीवन, ओके, दिस इज द सेकेंड। थर्ड इज सम सम तो कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, द अदर वे अराउंड एक्चुअली। जब ऑल बोलते हैं, the other way round is sum. Okay, so this is diagram number 3. Diagram number 4 is very important. Like, these are like all bulls are asses and dogs is separately, which is sharing a common this thing with both single and not. ठीक है। अब this is the other way around, concentric circle, dogs is outside this, asses is in between dogs and bulls is separate. So blindly जब हमारा सम सम आएगा, ये पांच डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये पांचों अगर जस्टिफाई होगा तभी हम लोग आंसर को यस बोलेंगे। तो फ्रॉम ऑल दिस डायग्राम्स कंक्लूजन 1 and 2 एक्चुअली फॉलोज। सो अगर इसमें से एक भी डायग्राम जस्टिफाई नहीं करेगा, सो इट विल बी रॉन्ग। ओके एवरीवन, यस नो। तो अभी तक हम लोगों ने दो डायग्राम सीखे, एक है ऑल ऑल, एक है सम सम, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोर डायग्राम्स। ओके, हियर सम ऑल हम लोगों ने किए कर लिया, अब नो आता है, ठीक है। ओके, सम एक्टर्स some actors are singers, all singers are dancers, some actors are dancers, no singer is actor. Okay, so some singers are dancers दिया है, sorry, okay, some actors are dancers, देखो some actors are dancers, so obviously dancers में some actors will be justified like this। यहाँ पे ओके, दो तीन तरह के डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। एक है ऑल ऑल, जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट के, जो सम सम, यहाँ पे एक और टाइप है विच इज सम एंड ऑल। ओके एवरीवन, तब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर श्योर रहेगा और एक इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें दो तरह के डायग्राम्स होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ऐसे, एक होता है ऐसे। दिस इज डायग्राम 1, दिस इज डायग्राम 2। नो मैटर वॉट, अगर सम के साथ ऑल आएगा, दीज टू डायग्राम्स विल बी ड्रॉन। सो हम लोगों ने क्या सीखा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल में एक डायग्राम होता है, सम में पांच डायग्राम होता है, सम ऑल में दो डायग्राम्स होते हैं। ओके एवरीवन, यस नो, ओके ओके। तो वी गॉट आवर आंसर। दोनों जस्टिफाई किस में हो रहा है, some actors are dancers, no singer is actor, no हो नहीं सकता, जब some and all रहता है no कभी नहीं हो सकता, so second statement is wrong, ठीक है। okay everyone, here we will talk about no as well। no का भी diagram कैसे बनता है, that I'll talk about। all the harmoniums are instruments, all the instruments are flutes। यहाँ पे एक ही concentric circle होगा, हारमोनियम, इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट्स, ठीक है। यहाँ देखो ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स हो नहीं सकता, बिकॉज फ्लूट्स इज आउटसाइड, तो दिस इज रॉन्ग। ऑल हारमोनियम आर फ्लूट्स, yes definitely, so only two follows। Are we
अंडरस्टैंडिंग? यस, नो? Yes, ma'am. ओके। प्रीत, आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट्स? Actually, I joined late. I was like I'll just knowing quickly about the things. I'll just quickly say, okay? अभी तक हम लोगों ने तीन तरह के टॉपिक्स पे बात किया है। ऑल ऑल जब होगा तब, ठीक है, सम सम होगा तब, और ऑल एंड सम होगा तब, ठीक है। सो जब ऑल ऑल होता है, देयर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब सम सम होगा, देयर आर 5 डायग्राम्स, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है। जब सम सम होगा, नो मैटर व्हाट, वही 5 डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अगर पांचों जस्टिफाई होगा तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। एक में भी अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है तब आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओके, अंडरस्टूड? थर्ड इज सम एंड ऑल, जहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक पार्ट करते हैं, जो और भी हम तीन तरह के कंडीशंस अभी हम लोगों ने पढ़े। शुभांगी, शुभांगी क्या रिपीट करना है? ये वाला रिपीट करना है कि आगे वाला रिपीट करना है? ये वाला, ओके। हाँ, ओके। जब ऑल ऑल रहता है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो दिस इज फ्लूट्स, दिस इज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड दिस इज हारमोनियम, ठीक है। सो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट पॉसिबल, फ्लूट इज हियर। All तो not possible. All harmonium are flute. This is correct. So only two follows. By seeing the diagram, we will understand कि कौन सा सही है. Okay? Okay. आ गया मेरा sum and sum. Some mangoes are yellow. Some Tixo are mangoes. Some mangoes are green. Tixo is yellow. Okay? यहाँ पे देखो, ग्रीन का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स में देखेंगे, ग्रीन का कॉम्बिनेशन नहीं है। सो नंबर 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। यहाँ सम है, यहाँ पे पांचों डायग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे दो से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। एक, मैम हाँ, मैम बट ripe mangoes are also green ना? दिस इज फार अवे फ्रॉम रियलिटी। सिलोगिज्म इज ओनली स्टेटमेंट। ओके दिस इज स्टेटमेंट। जो ओके स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू हैव टू फॉलो दो स्टेटमेंट एज इट इज। वो अगर बोल सकता है कि लायन इज टाइगर, यू हैव टू बिलीव दैट, ओके ठीक है। तो दिस इज, मैम तो मैम जो सिलोगिज्म है, इसमें यही होता है ना कि जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको एज इट इज देख लेना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना होता है। कंक्लूजन को जस्टिफाई करना है कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। उसके ओके लिए हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। हम्म और चार कंडीशंस होते हैं। एक होता है ऑल, एक होता है सम सम, एक हम्म होता है आपके सम ऑल, एक होता है नो का कॉम्बिनेशन। अभी तक नो का कॉम्बिनेशन आया नहीं है, दैट आई विल टॉक अबाउट, ठीक हम्म है। नो का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। हम्म ये चार कॉम्बिनेशंस आते हैं, उसमें वही डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं। चार ओके कॉम्बिनेशंस में ही होते हैं। सिर्फ ओके हमें क्या याद रखना है? ऑल होगा। अगर ऑल ऑल है तो ये डायग्राम होगा। हम्म सम सम है तो ये डायग्राम होगा। सम हम्म ऑल है तो ये डायग्राम होगा। हम्म नो नो है तो ये डायग्राम होगा। ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। ओके और उससे हमें कंक्लूजन जस्टिफाई करना है, दैट्स इट। जब कंक्लूजन का डायग्राम होगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट का ही डायग्राम होता है। ओके, हम्म हम्म सो नन ऑफ द दिस थिंग फॉलोस। हम्म अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर सॉरी यस मैम Okay, moving on to the next question. यहाँ देखो, some ants are parrots, all parrots are apples. All apples are parrots, some ants are apples. Okay, अच्छा यहाँ पे भी जब हम some और all बोले थे,
क्या बोले थे, यही डायग्राम बनेगा, दिख रहा है? यस मैम। वहां पे यही डायग्राम बना। हम्म ऑल एप्पल्स आर पैरट्स, हम्म नहीं, नहीं, दोनों में जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, सम ants are apples, yes, only two follows, understood? यस Yes, ma'am. यहाँ देखो, सम ऑल, सम है। मैम हाँ, बोलो। मैम यहाँ पे वेन डायग्राम याद रखना है। सिलोगिज्म में यही 4 कंडीशन आएगा, यही डायग्राम याद करना है, यही ड्रॉ करना है, और कुछ नहीं। वेन डायग्राम, सो बेसिकली वेन डायग्राम भी यही है, ठीक है। वेन डायग्राम में भी जब सम ऑल आएगा, यही सब डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। सो ये 4 कंडीशन अगर याद रखोगे, सो बेसिकली सिलोगिज्म और वेन डायग्राम दोनों आप जस्टिफाई कर लोगे, ठीक है। ओके एवरीवन, Yes, ma'am. मैंने सम ऑल का किया है, सो आई जस्ट क्विकली, बिकॉज ऑल अगेन आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू, बिकॉज मुझे नो वाला आप लोगों को थोड़ा बताना था, ये एक कंडीशन। उसके बाद आई विल क्विकली गो टू क्लॉक, ठीक है, क्योंकि सिलोगिज्म मोस्टली यही है, यही 4 कंडीशंस है, यही डायग्राम्स है, यही याद करना है, यही करना है, ठीक है। प्लीज ये वाला चैप्टर में अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। वो अगर इंसान को जानवर बोल रहा है तो आपको वैसे ही फॉलो करना है, ओके। ओके एवरीवन, यहाँ पे Yes, ma'am. ऑल विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज वॉल। जब नो होता है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, ऐसे बनता है। ऑल ऐसे बनता है, सम वैसे बनता है, नो सेपरेट बनता है। सो नो वॉल इज डोर, डेफिनेटली, क्योंकि वॉल अलग है, अलग एंटिटी है, ओनली टू फॉलोज। अंडरस्टूड एवरीवन? मैम। Yes, ma'am. मैम मैम अगर क्वेश्चन में होता कि ऑल, थोड़ा सा बैक करिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा बैक। हाँ, अगर यहाँ पे होता ऑल विंडोज आर वॉल्स, तब हम डायग्राम कैसे बनाते? ऑल विंडोज आर वॉल्स, वॉल, हाँ। ओके। ऑल विंडोज आर वॉल्स अगर बोलता, दिस इज विंडो, दिस इज वॉल, ठीक है, ऐसे होता है। मैम यहाँ पे दिख क्या, नहीं रहा है। हाँ, अच्छा हाँ, दिख गई, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। अब यहाँ पे देखो, ऑल विंडोज आर डोर्स बोला है, विंडो, हम्म दिस इज डोर, नो हम्म डोर इज वॉल, हम्म कि वॉल के साथ डोर का कनेक्शन दिया है, विंडोज का नहीं दिया है, दिस विल बी अ सेपरेट, जब नो बोलता है दिस विल बी अ सेपरेट एंटिटी, यही डायग्राम। तो मैं मैम आपने दोनों में सेम ही बनाया है, क्या, मतलब इसकी जो, और जो क्वेश्चन में सम दिया है और मैंने आपसे ऑल पूछा, तो डायग्राम आपने दोनों का सेम बनाया है। तो ऑल ही है, यहाँ सम कहाँ दिया हुआ है? नहीं मैम, यहाँ पे दिया ना, सम विंडोज आर वॉल्स। दैट इज वो तो कंक्लूजन, कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन है, वो स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट है। नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, स्टेटमेंट, मेरी गलती थी। कंक्लूजन इज दिस, ठीक है। ओके, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कर ले। ऑल आएगा, नो मैटर व्हाट, जो भी एंटिटी है, हमें ऑल में ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके एवरीवन, सम आएगा, एक डायग्राम ऐसा आएगा, एक डायग्राम उल्टा रिवर्स आएगा, ठीक ओके है। मैम, समझ गई, यस मैम, ओके, ओके। मैम ये वाला एक बार बता दीजिए, क्या बताया आपने? दो दो डायग्राम बताए नीचे वाले, सम वाले का थोड़ा सा। सम वाले का मैं आपको एक सम वाले का एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले जाके, सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे सम दिया हुआ है, देखो, सम डॉग्स आर एसेस, सम एसेस आर बुल्स, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे, जो अभी मैंने 5 डायग्राम बनाए हैं वही है, ठीक है। सो ऑल आप लोगों को समझ में आ गया, सम में क्या है, ये देखो, दिस इज डायग्राम नंबर 1, ओके। सो बेसिकली हम लोग ऑल द कंडीशंस लेके चलेंगे, जब सम बोलते हैं ना, इट इज वेरी ट्रिकी। कैसा सम?
all and no is very clear. Some में ना it's very tricky. It is other way round also. जैसे यहाँ पे dogs है, asses है, bulls है. There should be a connection. वो तो उसके बारे में नहीं बताया गया है. So we will take this probability as well. अब जब some बोला है तो यहाँ देखो, अंदर अगर asses करेंगे, bulls करेंगे, बाहर dogs करेंगे, यहाँ पे भी some है. Some dogs are asses, some dogs are bulls as well. So we have to consider that as well. क्योंकि some is very tricky again I'm saying. ठीक है? Okay? All and no is very clear, some is very tricky. तो हम लोग ये 3 condition लेके चलेंगे. Now fourth condition is जहाँ पे bull is inside, asses is outside and dog कट रहा है ऐसे. ठीक है? Again some is justified. 4 डायग्राम हमें पता चल गया. अब 5वां डायग्राम पे बात करेंगे जहां पे अंदर रहेगा हमारा एसेस, बाहर रहेगा डॉग्स और बुल विल बी अ एंटिटी लाइक दिस जो रिवर्स होगा. सो बेसिकली इसका रिवर्स ये है. तो वी विल कंसिडर दीज 5 डायग्राम्स व्हेन सम होगा. ठीक है? ओके. अंडरस्टूड एवरीवन? ऑल समझ में आ मैम गया? हाँ. 3 वाला जो वेन डायग्राम है वहां पे तो मतलब सम एसेस तो बुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एसेस ही तो बुल हो रहा है ना. सम एसेस आर बुल्स. ठीक है? हाँ पूरा का पूरा क्या दिक्कत तो कुछ नहीं है. सम बोला है, दैट इज जस्टिफाइंग. करेक्ट? हाँ 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 ऑल के बारे में कुछ बोला नहीं गया है. हाँ. ऑल के बारे में कुछ जस्टिफाई किया गया है? नहीं. नहीं. ऑल भी तो हो सकता है. वही मैं बोली ना कि वी हैव टू कंसिडर ऑल द प्रोबेबिलिटीज. ओके? ओके. ऑल समझ में आया, सम समझ में आया, सम ऑल समझ में आया सबको? हाँ. हाँ गौरी, वेलकम बैक. बहुत दिन बाद. हाँ बोलो. मुझे ना आइदर और वाला नहीं समझ में आता कब लगेगा. इधर और हाँ, जो आइदर और वाला ऑप्शन होता है ना, तो वो कब लगता है. वो बेसिकली नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? आइदर यू आर जस्टिफाइंग और यू आर नॉट जस्टिफाइंग. सिलोगिज्म में स्पेशली ऐसे कैसे हो सकता है? आपके 5 डायग्राम सेटिस्फाई करेंगे तभी होगा. करेक्ट? अगेन आई विल जस्ट आपको एक क्विकली समझा दूंगी तब आपको समझ में आएगा. 1 सेकेंड. बोथ तो समझ में आ गया. करेक्ट? बोथ नॉन समझ में आ गया. आप बोलो ईदर ना. इधर ईदर एक्चुअली नहीं होता है. मैंने एक जगह ना ट्रिक देखी थी कि उसको कैसे मतलब कैसे फाइंड करते हैं. सो बेसिकली सिलोगिज्म में ईदर नहीं होता है क्योंकि जब आपके मल्टीपल डायग्राम्स होते हैं ना गौरी, या सबके लिए मल्टीपल डायग्राम्स होते हैं, सारे डायग्राम्स जब जस्टिफाई करते हैं तभी आपके वो बनते हैं कंडीशंस. ठीक है? सो कॉन्क्लूजन्स ईदर और नहीं बनेगा. बिकॉज ईदर और कब बनता है? जब ये है तो वो जस्टिफाइड नहीं है. लाइक कंक्लूजन 1 इज जस्टिफाइड तो कंक्लूजन 2 इज नॉट जस्टिफाइड. अगर कंक्लूजन 2 इज जस्टिफाइड, कंक्लूजन 1. जब डिपेंडेंसी आता है सिलोगिज्म में, डिपेंडेंसी कंक्लूजन में नहीं आता है. ठीक है? ओके? अंडरस्टूड? आप लोगों का फेवरेट चैप्टर शुरू होने वाला है. वो है क्लॉक. आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम नाउ. बहुत टाइम. 6:35. 6:35. बहुत टाइम है. कहाँ गया मेरा? ओके. आई विल क्विकली टॉक अबाउट क्लॉक. ओके? आज मैं क्लॉक का इजी वर्जन बताऊंगी आप लोगों को. अगर आप लोग मेरा क्लॉक, एक 1 सेकेंड. वो वाली ट्रिक बता दीजिएगा, वो अपोजिट फाइंड करने वाली. ऑपोजिट
वो जो नहीं रहता वो वाटर इमेज वाला, उसका कैसे आपने कुछ डिवाइड बताया था, वो भूल गया है। किसी से डिवाइड करते हैं 5, 11/5 समथिंग कुछ आपने बताया था ना। 1155, हाँ अभी करेंगे ना क्लास, अभी इसमें करेंगे। 1155 माइनस करना होता है। वाह गौरी, आप बीच में एक क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसे आई एम गेटिंग स्टक कि क्या क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, मैं सारा ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सब बताऊंगी, ठीक है। क्लॉक, आज मैं एक पार्ट बताऊंगी क्लॉक के। 1 सेकेंड, ये वाला नहीं है शायद, ये वाला है, यही वाला है कि अगेन प्लीज ट्राई टू कम्युनिकेट विथ मी अगर नहीं समझ में आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, पीडीएफ में जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अलग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाई हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो इजी लगे वो सॉल्व करना। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, जो इजी लगे उससे सॉल्व हो जाएगा। एक में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, एक में ज़्यादा लॉजिक है, ठीक है। अगर यू आर ओके विथ लॉजिक, गो अहेड। अगर यू आर ओके विथ कैलकुलेशंस, गो अहेड। सिर्फ आंसर आना चाहिए। हाँ महिमा कुछ बोल रहे थे। हाय मैम। हम्म। मैम एक्चुअली मैंने ना जैसे ऐप का आज है ना वापस मॉक टेस्ट दे रही थी, उसमें जो रीजनिंग वाला पार्ट है वहाँ पे जो लेटर्स है जैसे कीवर्ड इज लाइक रीनेम्ड एज दिस वर्ड, वो बहुत टफ पड़ रहा है मैम, वो एक्चुअली सॉल्व नहीं हो रहा है। Okay. तो कोडिंग डिकोडिंग ना। यस मैम, कोडिंग डिकोडिंग एंड लाइक एप्पल इज चेंज्ड एज ग्रेप, लाइक वो वाले उनमें जैसे नंबर्स भी थे किसी में कि एप्पल का नंबर ही कर दिया है पर्टिकुलर, मतलब A is 20 लाइक ऐसे ऐसे करके, तो ग्रेप के डिजिट्स क्या होंगे? हाँ वो तो कोडिंग डिकोडिंग, अब क्लॉक में मैं कोडिंग डिकोडिंग कैसे समझाऊं। मैम अगर आप नेक्स्ट क्लास लेते हो तो उसमें एक बार कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा दीजिएगा। मैं आज के क्लास के बाद मैं आप लोगों को कल ब्रेक दूंगी। कल आप लोग पढ़ लेना। रिपीट आप लोगों को, मुझे नहीं लगता लास्ट तक सॉरी रिपीट। बोलो, मार के काय भागा तुमको? सॉरी बोलो जल्दी। सॉरी, सॉरी सॉरी बोलो जल्दी। इतना सॉरी मत बुलवाइए भाई। ओके, सो हाँ, कोडिंग डिकोडिंग इज अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर, विल नॉट टॉक अबाउट। आई एम नॉट कमिटिंग अगेन, क्योंकि मुझे लास्ट जब से मैं क्लास स्टॉप की थी मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे सिलोगिज्म एंड क्लॉक का। कोडिंग डिकोडिंग करना है, सो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। अगर मैं क्लास अरेंज कर पाई तो डेफिनेटली मैं करूँगी, मतलब जितना हेल्प हो सके आई विल डू दैट। ओके। ओके मैम, थैंक यू। क्लॉक, सो क्लॉक क्या होता है, जहाँ पे हम लोग एक डायल देखते हैं, वहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड हैंड्स देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्लॉक केज ऑफ 4 कंपोनेंट्स। एक डायल होता है जिसके ऊपर क्लॉक हैंड्स रहते हैं, आवर हैंड्स, मिनट हैंड्स, सेकेंड हैंड्स। ओके ओके, सो बेसिकली डायल इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। जब हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स बोलते हैं, इट कैन बी इक्वल स्पेसेस और मिनट स्पेसेस। ओके, जब हम लोग एक ही डायल को 12 में डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल स्पेसेस, 12 इक्वल स्पेसेस में, तब दैट इज कॉल्ड आवर स्पेसेस। प्लीज कोई कैमरा ऑन कर दो भाई, हमको बिना शक्ल देखे ऐसा लगता है मैं खुद से बात कर रही हूँ। मेरा तो ऑन ही रहता है। युक्ता और या प्लीज। ओके, सो या समझ में आ गया। एक क्लॉक को हम लोग 12 डिवाइड कर सकते हैं। जब 12 में डिवाइड करेंगे इट इज आवर आवर स्पेसेस, एंड जब 60 मिनट्स में करेंगे तो दैट विड बी 60 स्पेसेस और सेकंड स्पेसेस। सेकंड स्पेसेस उसका अलग कॉन्सेप्ट है। सो अभी तक आवर स्पेसेस और मिनट स्पेसेस पे ही बात करते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, मूविंग ऑन टू
मिनट स्पेसेस। मिनट स्पेसेस क्या होता है? सो बेसिकली 1 मिनट एक स्पेस होता है। सो जब पूरा आवर घूमता है, सो दैट इज 60 मिनट्स और 60 इक्वल स्पेसेस। ठीक है। जब 12 बिकॉज हमारा आवर इज मतलब हमारा दिन 12 में डिवाइड है। सो इट्स लाइक 12 इक्वल आवर स्पेसेस in a day, 12 equal hour spaces, afternoon and night. Okay, so basically रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे एक, फिर 12 बजे से 12 बजे एक, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सेकेंड हैंड क्या होता है? सो बेसिकली यहाँ पे हमको एक चीज समझाना है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे जब स्टार्टिंग होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, खत्म यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, खत्म यहाँ पे होता है। क्योंकि जब ये यहाँ तक जाता है वो सेकेंड नेक्स्ट आवर में कैलकुलेट होता है। ओके ओके, सो एवरी आवर मिनट लॉस्ट इज 5 मिनट्स, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटे में बिकॉज ऑफ सेकेंड हैंड हम लोग 5 मिनट लूज करते हैं। सो बेसिकली 55 मिनट्स इन 1 आवर। क्यों करते हैं मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ओके, क्योंकि जब वो पूरा मतलब 12, सो बेसिकली हम लोग 12th हाउस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11th पे क्लोज करते हैं। क्यों 11th पे क्लोज करते हैं? जब वो 12th तक जाता है, दैट मिनट इज कंसिडर्ड इनटू द नेक्स्ट आवर। ठीक है, तो इस आवर में वो कंसिडर नहीं होता है बिकॉज वो नया नया सर्कल स्टार्ट हो जाता है। वो लाइक 11 से 12 तक मिनट्स जो 5 मिनट्स हैं पूरे। हाँ, 5 मिनट्स लॉस हो जाता है बिकॉज जब वो मतलब जैसे 11 से 12 जब जाता है, कंप्लीट करता है, दैट 12 में जब चला गया, दैट इज कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट आवर। इसीलिए 1 घंटे में 5 मिनट का लॉस होता है, इतना ही याद रखो। एक मैम घंटे एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वो 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट? ओके, जब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जब 11 तक गया, उसके बाद जब 12 में जाएगा, दैट इज जब 12 बजता है। ठीक है, जब मिनट हैंड जब मतलब जब पॉइंट कर, मिनट एंड आवर हैंड जब दोनों 12 में करता है, ठीक है, फिर घूम के जब आता है, तब ऑलरेडी आवर हैंड मूव हो चुका होता है 5 मिनट। ठीक है, समझ में आया? सो जब 12 तक पहुंचता है, दैट दैट पर्टिकुलर 5 मिनट इज कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट आवर। सो हम लोग 1 घंटे में 5 मिनट लॉस करते हैं इन एनी वेज। ठीक है, एवरी आवर। एवरी आवर, एवरी आवर। ठीक है, सो हम लोग जब अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, एवरी आवर 5 मिनट्स हम लोग लॉस करते हैं। सो इफेक्टिव मिनट्स इज 55 मिनट्स इन 1 आवर। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कोइंसाइड कब होता है? सो बेसिकली अभी मैंने बताया, इफ इन एवरी 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स और 5 मिनट्स आवर हैंड पे लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने बताया कि जो स्मॉल वाला हैंड है वो पहले ही पहुंच जाता है। बेसिकली जब ये 12 बज रहा है, ठीक है, तो 1 घंटा जब घूम के आएगा, तो ये इसमें चला जाएगा ना, और इसने कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया था ना, तो ये तो यहाँ तक ही आएगा। तब तक आवर हैंड आगे बढ़ चुका होगा ना, ये 5 आवर 5 मिनट पहले के चला गया, तो ये 5 मिनट तो लॉस होगा ना, और आवर हैंड 55 मिनट्स गेन करता है। ठीक है, वो आगे चला जाता है। ओके, मतलब
वाइस वर्सा, जो जैसा आप मीन्स कॉन्सेप्ट। एक्चुअली 5 मिनट्स लॉस नहीं हो रहा है, बस वो डिस्टेंस जो उसके स्टिक का है वो बस है हाँ, लगता तो है जब ना। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सो इट इज सेइंग दैट इन 60 minutes 55, सो बेसिकली द मिनट हैंड गेन्स 55। ठीक है, स्पेसेस कह सकते हैं, लाइक 55 स्पेस जो आपने बताया था, लाइक क्योंकि 55 मिनट्स की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कि मिनट्स कैसे कम होगा, 60 तो नहीं, होने ही। 55 minute स्पेसेस। स्पेसेस, ओके। 55, हम लोग स्पेसेस नहीं बोलते, हम लोग मिनट्स ही बोलते हैं, मतलब क्लॉक के कॉन्सेप्ट्स में मिनट्स ही बोलते हैं, ठीक है। बट आपको अगर आपके इजी सहूलियत के लिए आपको अगर मिनट स्पेसेस बोल के से आप याद रखोगे तो मिनट स्पेसेस बोलो, ठीक है, बट इट इज मिनट्स, ठीक है। ओके, इन एवरी आवर बोथ हैंड कोइंसाइड 0 डिग्री अपार्ट, ठीक है, 0 डिग्री अपार्ट में कोइंसाइड होता है। सो बिटवीन 11 to 1 हैंड्स आर टुगेदर। 11 to 1 में 12 बजे कोइंसाइड हुआ, 12 बज गया हमारा, ठीक है। सो द हैंड्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, एंड सेम स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब ऑपोजिट टू ईच अदर होता है, और 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है। 0 में कोइंसाइड करता है, 180 डिग्री में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। सो here we have to understand one very good concept, which is if two hands are in opposite direction, हम लोग straight line, वो straight line में दोनों में 30 minutes का अंतर होता है, ये क्लॉक बोलता है, ठीक है, 30 minutes का अंतर होता है। तो हर घंटे में वो चीज एक बार होगा, ओके। अब सेम कॉन्सेप्ट जो 55 minutes वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगेगा, जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, 1 12 1 2 3 4 5 11 तक, जब 12 बजे आएगा दैट इज कंसिडर्ड इनटू द नेक्स्ट लॉट। यस, नो? मैम कैन यू प्लीज रिपीट, नहीं समझा। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का बात करते हैं, 12 बजे एक बार स्ट्रेट लाइन होगा, फिर 1:35 पे होगा, ऐसे ऐसे करके हर बार, हर घंटे में एक बार होगा। जब वो कंप्लीट कर रहा है 12 बजे, मतलब 12th के हाउस पे जा रहा है, जब 12th के हाउस पे वो जा रहा है, दैट वन सिंगल लाइन इज कंसिडर्ड इनटू द नेक्स्ट, क्योंकि घंटा पूरा हो गया ना। घंटा पूरा होने से जैसे 12 के बाद क्या होगा, एक, तो स्ट्रेट लाइन 12 घंटे में 11 बार होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है दैट इज कंसिडर्ड टू नेक्स्ट लॉट, ठीक है। तो पूरे दिन में वो कितना बार होता है, 11 × 2 22, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने जो समझाया, सिमिलरली जब हम लोग विल टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल विच इज, सॉरी, राइट एंगल विच इज 15 minutes अपार्ट, 1 घंटे में 12 बार होता है, 1 2 3, ओके, 12 बार होता है। सेम कॉन्सेप्ट, आधे घंटे पे एक लॉस, 1 घंटे पे एक लॉस, ओके। तो मैम राइट एंगल वाला दोबारा समझाना। वही राइट एंगल ही समझा रही हूँ अभी। हाँ। 15 minutes का स्पेस अपार्ट होता है, ठीक है, वहां पे 11 बार होता है, यहाँ पे 22 बार होता है, क्योंकि वो 2 बार लॉस होता है, ठीक है। वहां पे 1 घंटे पे एक बार लॉस होता था, यहाँ पे आधे घंटे में एक बार लॉस होता है, इसीलिए 22 टाइम्स, ओके। मैम मैम ये जो अब हमें कॉन्सेप्ट बता रही हैं कि 15 मिनट्स अपार्ट होता है और 30 मिनट्स अपार्ट होता है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, या मतलब इसका कुछ मतलब कैसे, मतलब आई मीन। क्वेश्चन आएगा इसका। ओके 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 ओके। मैं जो जैसे जो मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे 15 minutes, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री नो मैटर व्हाट एक दिन में 45 44 टाइम्स आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं अभी आपको जो समझा रही हूँ विच इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, वाई नॉट 48, वाई 44, बिकॉज जब वो कंप्लीट करता है दैट इज कंसिडर्ड इनटू द नेक्स्ट आवर, इसीलिए वो लॉस होता है, 48 टाइम्स ना होकर 44 टाइम्स होता है,
वो दिन में 4 बार लॉस होता है, इसीलिए 4 ओके। कम आता है। ठीक है, वहां पे 2 कम आता है, यहाँ पे 4 कम आता है। वहां 24 आवर्स में 24 टाइम्स होना चाहिए, बट 22 टाइम्स होता है। यहाँ पे 48 होना चाहिए, बट 48 ना होके 44 होता है, बिकॉज वहां पे 22 होता है, उसका डबल 44। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको इसको वहां पे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ओके एवरीवन, लेट्स ओके मूव। मैम। ठीक है, मैम तो ऑपोजिट इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी बार मतलब कोइंसाइड होता है और ऐसे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। व्हेन हैंड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इट्स 30 मिनट्स अपार्ट। तो 12 घंटे में एंगल ट्विस्ट इज 360 डिग्री। मिनट हैंड्स 60 मिनट्स में 360 डिग्री करता है। सो इफ अ वॉच इंडिकेट्स 88:15 और उसका सही टाइम है 8 बजे, सो वी विल से द क्लॉक इज 15 मिनट्स टू फास्ट, मतलब 15 मिनट फास्ट है। ठीक है, अगर 7:45 दिखा रहा है और 8 o'clock इज द राइट टाइम, विल से 15 मिनट्स टू स्लो। ओके, गौरी है। अब गौरी को बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन वो था। तो बेसिकली जब एक क्लॉक रहता है, कभी कभी देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड, अगर क्लॉक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो क्लॉक में जो टाइम दिखा रहा है, तो मिरर में क्या दिखाएगा? ठीक है, यस मैम। उसके लिए हम क्या करेंगे? 11:55। 1160 से माइनस करें, 11:60 से। ओके। नो मैटर व्हाट। 1160 से माइनस करेंगे। 1160 10 और 10 दिखा रहा है, 1160 से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 150। 150 इज आवर आंसर। कुछ अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, 1160 से माइनस करना है। ठीक है, मैम मेरे को ये 15 वाला फिर से बता दीजिए, वो 15 मिनट्स वाला। 15 मिनट्स वाला। 15 मिनट्स टू फास्ट, 15 मिनट्स टू स्लो वाला। अगर कोई घड़ी 15 मिनट फास्ट है तो हम लोग बोलेंगे 15 मिनट्स टू फास्ट, अगर स्लो है हम लोग बोलेंगे 15 मिनट्स टू स्लो। ठीक है, दिस इज टेक्निकल टर्म्स फॉर योर क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन दिया जाता है वहां पे बोला जाता है। ठीक है, मेरे घड़ी में 10:10 बज रहा है, उसका मिरर इमेज क्या होगा? 1160 से माइनस करेंगे 10 को, 150 इज माई आंसर। ओके, यस नो, समझ में आया? यस मैम। प्रीत आया समझ में? नहीं आया? आ गया? मैं उल्टा माइनस कर रही थी, 10 से 1160। 1160 से आपको माइनस करना है। हाँ ओके। ठीक है, जो आएगा दैट इज आवर आंसर। ओके, मैम ड्रॉ करके भी तो कर सकते हैं हम। इतना टाइम नहीं मिलता है। 1160 से डायरेक्ट माइनस कर दो, ड्रॉ करके आप ह्यूमन एरर नहीं, गलत भी तो। मतलब राफ्टी ड्रॉ करके, मतलब वो 6, 12 एंड जरूरत 3, क्या है? 9, 10। 1160 से माइनस कर देना ना, उतना ड्रॉ इतना टाइम वेस्ट करने का क्या है? 1160 से माइनस करने तुरंत आ जाएगा, एंड दैट इज 100% करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन एरर नहीं इन्वॉल्व है। एंड टाइम भी वेस्ट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। भी नहीं वेस्ट होगा, आप बस माइनस करोगे। टिक टिक घड़ी जो सुनाई देती है ना, तो कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, उस टाइम पे ड्राइंग जाता है तेल लेने। ड्राइंग करने का बहुत मौका मिलेगा आप लोगों को, डोंट वरी, बहुत मौका मिलेगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट few concepts like स्लो और फास्ट क्लॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जान लीजिएगा मैं क्या बता रही हूँ। इट इज, मैं आज जो बता रही हूँ क्लॉक, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्लॉक से तो नहीं आता है। ठीक है, ये सारा कुछ पीडीएफ अगर समझ गए, यू आर सॉर्टेड फॉर क्लॉक्स। हाँ गौरी, कुछ बोल रहे थे? क्वेश्चन मैंने देखा था ब्रोकन क्लॉक वाला, वो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। गौरी, हमको कैसे पता ब्रोकन क्लॉक कौन सा क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन लेके आते हैं ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना गौरी। ठीक है, आई क्या विल। do pdf after class? हाँ, सॉरी।
ये पीडीएफ आप शेयर कर देंगे क्या फॉर मैंने रिवीजन पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ओके मैम। मैम जो वो गूगल ड्राइव पर शेयर किया है वही वाला कह रहे हो, लाइक सारे जो टॉपिक्स हैं। मैम वो पीडीएफ्स ओपन नहीं होती हैं, कुछ कुछ ओपन हो रही थी, बाकी सब ओपन नहीं होती, पता नहीं क्यों। ओपन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने दे रखा है। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, ठीक है। हाँ एक बार आप देख लेना। ये मैंने तो पीडीएफ खोल खोल के यही पीडीएफ मैंने ट्रांसफर किया है शशि सर को। शशि सर वो ने उसमें कुछ पता नहीं आप लिखा हुआ मुझे था, मैम एक सर बार ने स्क्रीनशॉट भेजो। आप आपने जैसा ड्राइव में दिया ना, सर ने बिल्कुल वैसा ही हम लोग को सेंड कर दिया। तो हम लोगों ने जब अपनी गूगल ड्राइव में जाके ओपन किया ना, कुछ भी नहीं हो रहा था मैम, ओपन ही नहीं हो रही थी एक भी पीडीएफ। मैंने स्क्रीनशॉट सर को भेजा था, बट शायद उस टाइम सर ट्रेवल कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार रीसेंड कर दूंगी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आया था कि कुछ ना पीडीएफ 5-5 KB का दिखा रहा था। तो मे बी वो ना अपलोड करते समय शायद वो इंटरनेट इशू रहा हो तो अपलोड नहीं हुआ हो। एक बार मैं क्या करता हूँ, डिलीट करके ना पूरा फोल्डर फिर से एक फोल्डर अपलोड कर देता हूँ जो मैम ने मुझे दिया है। और फिर मैं देखता हूँ। अभी हमारे पास इंटरनेट का स्पीड भी, वो लास्ट दिन था ना, मुझे ये अच्छे से याद है कि उस दिन ना हमारा इंटरनेट खत्म हो गया था। मतलब वो खत्म नहीं हो गया था, उनका सर्वर ही खत्म हो गया था। अगर 2 दिन का तो प्रॉब्लम चला था। हमने मोबाइल से डेटा से यूज करके उसको अपलोड किया था, तो मे भी वो एक कारण रहा हो कि प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ हो फाइल। तो कोई नहीं, एक बार आज मैं ना डिलीट करके फिर से, डिलीट नहीं करूंगा, एक नया फोल्डर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं देख के देखता हूँ कि वो प्रॉब्लम फिर से होता है या नहीं। राइट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। Okay. So, if a watch or clock indicates 9:15 when the correct time is 9 o'clock, then it is said 15 minutes too fast. On the other hand, ये तो अभी बात किया. What will be the angle traced between two hands of the clock 9:50? जब 9:50 होता है तब what is the angle traced? ठीक है, तो इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. सो 12 घंटे में 360 डिग्री. ठीक है, तो 1 घंटे में 360/12. ठीक है, 9 hour 50 minutes. ओके, 9 hour 50 minutes को आपको आवर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आवर में कन्वर्ट करोगे तो 59/6 आएगा. ओके, सो 360/12, 59/6 इज 59/6. ठीक है. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. हाय एवरीवन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मुझे नहीं पता मैं क्यों आउट हो गई थी. आई एम बैक. ओके, यस. ओके, सो एज वी कैन सी, 12 घंटे में 360 डिग्री. तो 1 घंटे में 360/12, 9 hours 50 minutes, विच इज कन्वर्टेड इंटू आवर, विच इज 59/6. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 360/12 इंटू 59/6
इज इक्वल टू उसको कैलकुलेट करके 295 दिख रहा है सबको? यस मैम। अपन इंटू कर सकते हैं ना 59 पॉइंट बाय 6 को। हाँ, क्या 59 सेपरेट कर सकते? अपन को ना डिग्री निकालना है तो 15 आपने बताया था कि एक आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। नहीं, 50 30 डिग्री का एंगल उस बनता है। पे अभी आया नहीं। अच्छा, नहीं, 30 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनता है। ओके। ठीक है, वो मैं उस पे आऊंगी, प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके, सो हम लोगों को 59/6 में 295 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 60 मिनट्स में कितना होता है? 360। हमारे पास 950 का था, याद है? हम लोग 9 का तो कर दिए, 50 मिनट्स का। सो इट्स 360/60 इंटू 50, 300। सो 300 माइनस 295 इज 5 डिग्रीज। ओके एवरीवन, जो भी बढ़ाएगा आइदर आवर या मिनट्स, जो बढ़ाएगा उससे वो माइनस हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिग्रीज कैन नॉट बी इन नेगेटिव। ओके एवरीवन? मैम यस। मैम मेरे को ना ये 59/6 आवर्स ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आपने कैसे किया इसको? So 950, 9 hours, 50 minutes. 9 hours is 9 into 60 is 40 540, plus 6 plus 50 is 590 by 60. 60. 590 by 60 is 59/6. Okay, Samadrita? यस मैम, यस। Okay. 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 So बिफोर गोइंग टू, हमारे पास 5 स्लाइड्स और बचे हुए हैं। आई विल क्विकली गो थ्रू दिस 5 स्लाइड्स, ये वो उसके पहले समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है, आई होप। वन सेकेंड। ओके, so now this is an example to a clock gains 10 seconds in 3 hours। ठीक है, एवरी 3, समझिए, एवरी 3 आवर्स 10 सेकेंड वो गेन करता है। ठीक है, तो एक मंडे सुबह 4 बजे वो क्लॉक वाला सेट किया गया है। ठीक है, अभी वो क्लॉक का टाइम बता रहा है ट्यूसडे इवनिंग 7 बजे, रात के 7 बजे। ठीक है, तो टोटल आवर्स कवर्ड इज 39 आवर्स। 24 घंटा प्लस 12 घंटा प्लस 3 घंटा, 39 आवर्स। यस, नो? यस मैम। ओके, सो एवरी 3 घंटे में वो 10 सेकेंड गेन करता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 10/3 गेन करता है। 39 आवर्स में 10/3 इंटू 39, 130 सेकेंड्स। तो करेक्ट टाइम इज 7:02 10 सेकेंड। ओके एवरीवन? यस मैम। ओके, आर वी गुड टू गो? नहीं समझ में आया ये। 3 घंटे में वो 10 सेकेंड गेन करता है। ठीक है, हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, 3 घंटे में वो 10 सेकेंड गेन करता है, तो वो घड़ी दिखा रहा है क्या? वो घड़ी मंडे सुबह 4 बजे सेट किया गया है, फिर छोड़ दिया गया है, फिर देखा गया है तब ट्यूसडे के शाम के 7 बज रहे थे। ठीक है, तो
मंडे टू ट्यूसडे 4 इज 24 आवर्स, फिर 4 से शाम वाला 4 इज अनदर 12 आवर्स, 24 प्लस 12, फिर 7 इज 3, तो 24 प्लस 12 प्लस 3 इज 39 आवर्स। 3 घंटे में टाइम गेन हुआ 10 सेकेंड का, तो 1 घंटे में 10/3 सेकेंड्स का गेन होगा। 39 आवर्स में 130 सेकेंड्स, 10 × 39/3, 130 सेकेंड्स। तो हमको अगर 7 बजे का टाइम दिखा रहा है, 130 सेकेंड्स प्लस कर टाइम, देंगे। हाँ, in 130 seconds हाँ mean 2 हाँ, minute 10 seconds. 130 सेकेंड इंक्लूड करना है, तो हमारा आएगा 7 बज के 2 मिनट और 10 सेकेंड। ओके एवरीवन, ठीक है। अगेन इट कैन बी द अदर वे राउंड, गेन भी कर सकता है, गेन करेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ गेन कर रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, लॉस करेंगे तो माइनस कर देंगे, मतलब जो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। ओके एवरीवन, Okay. ओके। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, शायद हमारा मेमोरी में कुछ याद आ जाए, ठीक है। एंगल कवर्ड सेकेंड 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री, एंगल कवर्ड 1 सेकेंड में 360/60 इज 6 डिग्रीज। ओके, angle covered by minute hands in 60 minutes is 360, 1 minute is 360/60 is 6 degree. Okay, angle covered in 12 hours is 360 degree, 1 hour 360/12, 30 degrees. Okay, yes, no? Yes, ma'am. Angle covered by our hand in 1 minute, 1 मिनट में कितना होता है? 30 डिग्री बाई 60 इज इक्वल टू हाफ डिग्री। इतना याद रखना है, 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री कवर करता है, ठीक है। ओके, द टाइम एंड आवर्स 22 टाइम्स जो वो करता है, कोइंसाइड करता है, वो दिया हुआ है 12 12 1 1 1 5 1 5 2 10 2 10 ऐसे करके, जो मैंने अभी बोला था 22 बार कोइंसाइड करता है, ठीक है। ओके एवरीवन, मैम तो ये लर्न करना है फिर पूरा जो आपने बताया अभी। हाँ, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज, अभी तक जितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया। दिस इज द लास्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट हियर, ठीक है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन और कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन, बट मैं एक्सप्लेन जैसे जैसे करूंगी, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, put your full concentration on my voice as well as on the screen. Okay, everyone? Okay. Calculate the reflex angle, greater angle between the clock 10:25. ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, सबको दिख रहा है? 10:25 दिख रहा है? दिस एंड दिस दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. मिनट हैंड्स मूव 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज एक्स एंड वाई कर लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई कितना डिग्री है, सो वो कैलकुलेट करना है। तो मिनट हैंड मूव 6 पर मिनट, सो एक्स इक्वल टू 25 मिनट्स, 10:25 25 मिनट्स, 25 इंटू 6 150। ओके, आवर हैंड कितना कहता है? हाफ डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 35 मिनट टू नून, 1 घंटा 35 मिनट टू नून मतलब 10:25, मतलब 10:25 12 माइनस 10:25 इज 1 hour 35 मिनट्स टू नून। सो बेसिकली हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था? 12 से ये वाला डिग्री, तो हम लोग
इतना कैलकुलेट ना करके 12 से माइनस कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, सो हमारा 1 घंटा 35 मिनट का कितना हुआ? 95, 95 मिनट्स। ओके, 95 मिनट्स इंटू हाफ 47.5। वहां पे कितना था? 150 प्लस 47.5 इज 197.5। ओके, यस, नो? सबको समझ में आया? यस यस, मैम। यस, 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 यस। यस मैम। ओके, मूविंग ऑन। ओके, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो ये सीखा कि कितना डिग्री है, 1025। इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे, जैसे 1025 को आवर्स में कन्वर्ट करके, जो मैंने इसके पहले वाला वो दिया था। थैंक यू जोहान। जोहान, आपका पेंटिंग बहुत अच्छा है, बट करेंटली हम लोग कैट का क्लास नहीं कर रहे हैं, गैट का कर रहे हैं। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन गैट। ओके, तो उसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। सर पीडीएफ दे देंगे। प्लीज उसकी जो प्रैक्टिस सेक्शन, एक प्रैक्टिस पीडीएफ है, उसमें जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियरली वहां पे बता दिया है। ठीक है, सो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। वो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, जो इजी लगे उसको करिएगा। मूविंग ऑन, दैट इज वन क्वेश्चन जहां पे आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसको बोलना पड़ेगा कितना डिग्री, कितना एंगल बन रहा है। दैट इज वन। दिस इज अनदर कि 7 से 8 के बीच सेम लाइन पे, ठीक है, कौन से टाइम पे सेम लाइन पे बनेगा। ओके, हाँ, कुछ नहीं मैम। ओके, ठीक है। सो दीज आर द टू कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होता है। सो प्लीज इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सो लेट अस अज्यूम कि m मिनट्स, 7 बजने के m मिनट्स बाद दोनों लाइन 180 पे है। ठीक है, तो एट 5 मिनट m मिनट्स पास 7, जो x है विच इज दिस एंड y इज सेम। ये समुद्रिता? मैम, ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्लॉक इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे 12 में दोनों सेम साथ होता है, फिर ओके ओके 6:30 पे साथ होता है। इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड, इट शुड नॉट बी टुगेदर। ओके। ओके, हम ये अज्यूम करेंगे 5 मिनट, 7 बजने के 5 m मिनट्स बाद वो कोइंसाइड करता है। तो हमारा ये वाला डिग्री x एंड y शुड बी इक्वल, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट में चलता है, तो x इक्वल टू m इंटू 6। m क्यों? क्योंकि 7 बज के 5 m मिनट के बाद हमारा कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, सो इट इज m 6m। ठीक है, और हाफ हाफ डिग्री पर मिनट, तो y इज इक्वल टू, y कहाँ से कैलकुलेट करना है? ये पूरा चीज कैलकुलेट करना है, विच इज 30 मिनट्स प्लस m इंटू हाफ। ठीक है, यस, नो, यस, नो? ओके, ओके ओके। 30 प्लस m इंटू 2। सो हमारा 6m इज इक्वल टू 30 प्लस m एंड हाफ। इसको कैलकुलेट करने से आएगा 5 मिनट, 5/11 मिनट्स। सो बेसिकली 7 बज के 5 मिनट, 5/11 मिनट्स पे हमारा दोनों लाइन सेम जगह कर रहा है। ठीक है, ओके, आर वी गुड टू गो? अगर क्लियर नहीं है तो बोल सकते हो। मैम, आवर हैंड समझ में नहीं आया। आवर हैंड मूव्स एट यहाँ पे। 5 m
m मिनट्स के बाद वो स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे अगर होगा तो यहां से भी तो m मिनट्स जाएगा ना। सो बेसिकली ये जो लाइन है, इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम, एक्स एंड वाई विल बी सेम आफ्टर m मिनट्स। तो m मिनट्स में मिनट हैड कितना ट्रेवल किया, 6 × m डिग्री, क्योंकि 6 डिग्री इन 1 मिनट अगर ट्रैवल करता है तो m मिनट्स में 6m डिग्री, यस नो। और आवर हैंड को कितना आना है, 12 से पूरा यहां तक, फिर इतना, इतना, ओके। तो ये पूरा ट्रैवल 30 मिनट्स में कर रहा है, प्लस m मिनट, ठीक है। तो m मिनट्स में हाफ डिग्री और 30 प्लस m/2। सो इसको कैलकुलेट करने से हमें आ जाएगा 5/11। ओके एवरीवन, यस नो, यस मैम। आया प्रीत समझ में? हम लास्ट पार्ट नहीं सुन पाई थी, बट यहाँ तक तो समझ आ गया था, लाइक एम का समझ आ गया था कि एम मतलब जो वो मिनट्स आपने बताया था ना, तो 60 प्लस करके यहाँ से भी वही सेम आएगा, फिर इक्वेट कर देंगे दोनों को एक्स इक्वेट को। कर देंगे तो हाँ उसको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 5/11 आएगा। तो 5/11 इज आवर आंसर, 7/5/11, ठीक है। ओके। ओके, दैट वुड बी आवर आंसर, ठीक। यहाँ देखो, दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अनदर क्वेश्चन जो आता है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आएगा ही अगर क्लॉक से रिलेटेड वो हो रहा है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आता है, ठीक है। एक वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स, ठीक है। 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन करता है। वो सुबह 7 बजे सेट हुआ है, इन द आफ्टरनून सेम डे 4 o'clock। टू टाइम कितना होगा? तो 5 सेकेंड में, सो बेसिकली 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स, तो 1 घंटे में कितना, 100 सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटे में 100 सेकेंड, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड्स। सो बेसिकली 3600 सेकेंड्स में वो कब इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट है ना, तो 3700 कवर कर रहा है, 100 सेकेंड ज्यादा कवर कर रहा है, यस नो? यस मैम। ओके। तो 1 घंटे बाद इनकरेक्ट 37/36 जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, इसको बस हम वो कैलकुलेट, 3700/3600, 37/36, ठीक है। मैम 120 सेकेंड, सॉरी मैम, बोलो आसमा। 360 सेकेंड इन 1 आवर है ना मैम? सॉरी, 3600 सेकेंड इन 1 आवर। हाँ, ওকে আসমা কি বাংলায় বলছে? আসমা, ও তুমি কি সরি বাংলা কথা সরি বলছো? ও, সরি। आसमा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ইয়াস यस ফ্রম मैम। মুর্শিদাবাদ। Okay. So Asma, basically 3600 second is in 1 hour, ठीक है। हाँ एक हाँ घंटे में वो 100 सेकेंड गेन गेन करता है। तो बेसिकली 3600 सेकेंड्स में 3700 कवर कर रहा है, 100 सेकेंड गेन कर रहा है ना वो, क्योंकि फॉल्टी है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो ज्यादा कर रहा है ना। हाँ, ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली टाइम में भी एक्स की जगह में मैंने टी आवर्स लिया है, तो टी आवर्स में वो कितना जा रहा है, 37/36 इंटू टी, ओके। तो सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक कितना टाइम होता है? बोलो। 9 hours। मैम 15 9 आवर्स। आवर्स, हाँ। हम्म। 4:15 है, तो 4:15, तो 7
से it is 9 hours 25 9.25. Okay? Yes, no? क्वार्टर पास यस यस हाँ 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 25 कैसे आया? 7 to 4 is कितना? 9 hours. 9 hours. और फिर क्या हुआ? Quarter past 4 बोला था, Quarter past 4. मतलब 15 minutes. हाँ, सो Quarter past 4 में Quarter past 4 दिखा रहा है, करेक्ट? तो उसका माइनस 4:15 से 7 माइनस करो, कितना होता है? 7 क्या माइनस कर रहे हैं? आवर्स. हाँ, सुबह 7 बजे से 4:15 बजे तक का कितना टाइम होता है? टाइम 9 hours हुए ना, 9 hours. 4:15 तक. 9 hours 15 minutes हो जाएंगे फिर. 9 hour 15 minutes. हाँ. ठीक है, और 9 hour 15 minutes को कन्वर्ट करो इन आवर्स. ओके, इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, तो 15 minutes इज इक्वल्स टू लाइक अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में करके तो फिर 25. ओके. करो. हाँ, तो 9:25 आ जाएगा ना आवर्स. ठीक है, प्योरली आवर्स में. ओके. तो 37/4 आवर्स आएगा, टू बी मोर प्रिसाइज. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 37/36 t इज इक्वल टू 37/4. यस, यस मैम। हम लोगों ने क्या बोला था? 3 t आवर्स के बाद सही हो रहा है, तो ये टाइम हमें मिल गया. सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 37/4. t इज 9 आवर्स. अब एक बात बताओ, हमें फॉल्टी क्लॉक में क्या दिख रहा था? 4:15, करेक्ट, विच इज 9 hour 15 minutes. और 15 मिनट हम लोग गेन किए हैं बिकॉज द क्लॉक वॉज फॉल्टी. यस, नो? तो ओरिजिनल टाइम इज 4 o'clock, 4:15. अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। ओके, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, विच इज 9 hour 15 minutes में वो कितना गेन करता है? 37 बाई दिस थिंग जो वो गेन करता है, उससे हम लोग डिग्री कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं. ये सेम क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दूसरा कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझाया है. दोनों कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, जो इजी लगे उससे फॉलो कीजिएगा. ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके सामने पीडीएफ में हो जाएगा. लेट मी शो यू, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है. Let me show you. Give me just 1 second. ओके, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया है. 1025 वाला एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, रिमेम्बर? 1025 याद है? रिफ्लेक्शन 9:25. अच्छा, वो वाला. ओके. 25 किया था ना, वो 12 से माइनस करके 1 hour 35, वो ऐसे भी कर सकते हो. जैसे 1025 को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर 360/12 इंटू दिस, ये वाला निकल गया. फिर 25 मिनट में 360/60 इंटू 25, 150. सो 312.5 माइनस 150. सो बेसिकली 360 माइनस दिस इज 197.5. ठीक है, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट. अभी मैंने 10 + 5, 1 सेकेंड, ये
अभी 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 जो हम लोगों ने किया था, रिमेम्बर? अभी, ठीक है। 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स, 7 बजे वो है, 4 बजे, टू टाइम इज, यहाँ देखो, 7 से 7, सो 4 15 इज 9 hours 15 minutes, 37/4, 3 मिनट 5 सेकेंड, सो बेसिकली 3 मिनट 5 सेकेंड, 40 क्लॉक इज इक्वल टू ओरिजिनल क्लॉक का 3 मिनट है, 5 सेकेंड लॉस होता है, ठीक है। सो 37/7 20 आवर्स, इसको 3 मिनट्स 5 सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए आपको इतना बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है, आवर्स में कन्वर्ट किया गया है। तो 37/720 इज इक्वल टू 120 आवर्स। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने से इसमें भी 4 बजे आएगा। जो कॉन्सेप्ट ये या वो जो आपको इजी लगे उसको फॉलो कर सकते हो। ये 3 मिनट 5 सेकंड जो कन्वर्ट किया आवर्स में। 3 मिनट 5 सेकेंड्स को कन्वर्ट किया है। इस मैं ये वाला क्यों नहीं फॉलो करती हूँ प्रीत, मैं आपको बता देती हूँ पर्सनली, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होता है। उसमें सिर्फ फॉर्मूला बिठाओ और इजीली आप, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा उसमें कितना कम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस है। हाँ, इसमें कन्वर्ट करने में मान लो एरर आ गया कुछ तो बस फिर। एरर आ गया तो आपका कहानी खत्म, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू फॉलो एनी ऑफ द दिस थिंग कॉन्सेप्ट, जो आपको इजी लगे उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बस यही है कि वो कॉन्सेप्ट एक बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो वो अभी समझ बस आया है, याद हाँ, नहीं। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही है, शशि सर जब पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, आज या कल में बैठ के वो पढ़ लो, क्योंकि द फ्रेश, जितना फ्रेश आपके माइंड में रहेगा उतना इजीली आप समझ पाओगे, क्योंकि मतलब इफ यू सिट ऑन इट आप भूल जाओगे। याद है हम लोगों को स्कूल में बोला करता था, बोले कर मतलब टीचर लोग बोलते थे आज जो पढ़ा रहे हैं वो कल पढ़ के आना, सो दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोगों ने किसी ने नहीं किया था। मैम तो बोले जा रही है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। यस आयन, दिस इज फॉर बीएफ टेक एज वेल, एमएफएम के लिए भी, यस हाँ है। मैम हम्म, हाँ मैम गौरी। आपने डेटा इंटरप्रिटेशन पूरा कंप्लीट करा दिया? डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, और दो कॉन्सेप्ट्स उतना आता नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है कि कितना आप लोग करोगे। अगर आप फर्स्ट दो कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो लास्ट दो कॉन्सेप्ट्स भी आप समझ जाओगे, इसीलिए। बात मैंने टेबल और पाई चार्ट बस। हम्म, ओके मैम। ठीक है, और बताओ। तो आठ कुछ तो तारीख नहीं। को एग्जाम है, होपफुली उसके पहले मिलेंगे हम लोग। उसके बाद भी प्लीज याद रखिएगा, और अंटिल देन आप लोग चैप्टर्स पे बैठ जाओ, फिर मैम मैं तो ये पीडीएफ्स जो आपने पहले गूगल ड्राइव में एक साथ सेंड किया था वहीं से निकालने हैं? वहीं से निकाल तो लीजिएगा। वो तो लोड नहीं हो रहा था, तो आज आप लोग मतलब। आज शशि सर फिर से लोड कर देंगे, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो। डेटा इंटर थैंक यू मैम। हाँ हाँ गौरी। मैम डेटा डीआई की हम लोग, मैंने कम से कम 20 क्वेश्चंस कर लिए थे मतलब, तो अभी हम्म, और प्रैक्टिस करें? नहीं, बस इतना से क्योंकि मैंने ना मेरे 7 चैप्टर बस हो पाए मैथ्स के डीआई बस के। 7 चैप्टर, पता जो अच्छे से मतलब फुल प्रूफ 43 है। में बस 7 चैप्टर, कैसे गौरी, कैसे होगा। मैं तो बड़ी मुश्किल से 7 चैप्टर के याद हुए, समझ में आ रहे हैं। अभी सबके लिए, सिर्फ गौरी नहीं, सबके लिए नया चैप्टर्स मत करो, ठीक है। जो चैप्टर्स किया हुआ है उसको अच्छे से समझो, अच्छे से करो, बिकॉज ओनली 5 डेज में मिरेकल विल नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। एटलीस्ट जो चैप्टर्स आप कॉन्फिडेंट हो उसको और अच्छे से पढ़ो। दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज। 8 तारीख को एग्जाम है, 7 तारीख टेक अ ब्रेक, 7 तारीख में कुछ नहीं पढ़ो, नथिंग एट ऑल। 6 तारीख तक जितना रिवाइज कर सकते हो प्लीज, अगर आप लोग मेरा ये बात मानोगे, आई एम गारंटिंग यू, यू विल गिव योर बेस्ट, ठीक है। 6 तारीख को नहीं पढ़ो,
सॉरी सॉरी 7 तारीख को नहीं पढ़ो, 6 तारीख तक पढ़ो। 6 तारीख तक वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। नया चैप्टर्स अभी करने का जरूरत नहीं है। मैंने आज 2 चैप्टर पढ़ा दिया, वो रिवाइज कर लो, इनफ, ठीक है। जो लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं वो एक बार आप पीडीएफ भेज देंगी क्या, लॉजिकल रीजनिंग के? लॉजिकल रीजनिंग का पीडीएफ भी शशि सर को मैंने दे दिया है, वो उस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है गौरी। वो गूगल ड्राइव शशि सर शेयर कर देंगे। मैम उसमें इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए कुछ है क्या सब है उसमें, मैंने गूगल सब ड्राइव डाल, में? इंग्लिश मैथ सब डाल दिया मैंने। ओके मैम, थैंक यू। इंग्लिश हम बस सारे थोड़ा टॉपिक्स थे प्रैक्टिस की उसमें, कमी बस है। वही था कि ओपन ही नहीं हो रहा था। देखा मैंने, हाँ, सारे टॉपिक्स तो दिख रहे थे लेकिन ओपन नहीं हो रहे थे पीडीएफ्स। ओपन आज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, आज हो ओके, जाएगा, थैंक यू मैम। ठीक है। चलो आज कंप्लीट करें। जो लोग एमएफएम वाले हैं प्लीज स्टे बैक करना, अम, क्योंकि एमएफएम के वो करेंगे केस स्टडीज का लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक ओके, है। थैंक यू मैम। थैंक यू। बी डिजाइन लोग फिर मिलेंगे आप लोग।